ये चीज मैं बार बार बोलता हूँ बिकॉज दे जस्ट टेक स्टेप्स इन आउट ऑफ शेयर ह्यूब्रिस एंड उसके बाद ओ शिट ये क्या हुआ एंड देन दे रनिंग अराउंड ट्राइंग टू फाइट द फायर एंड दिस एंड दैट सो इफ यू हैव दैट मच पावर you're not even thinking about how things are going to go forward, so that's really sad. But इसका एक जो ecosystem है, आप online भी देखो, there's a guy called John Danielowitz. All of us are kind of taking his trousers off right now and spanking him nicely. uh, but if you have John Danielowitz, you have David Begeman, ये भी ग्रॉसमैन और वो भी आए थे बीच में, उनको जूते पड़े थे, दे रियलाइज नहीं यहाँ नहीं जाना, नहीं तो इंडियंस आर गोना गेट मैड, दोबारा कोई कॉन्फ्रेंस के लिए नहीं बुलाएगा इंडिया में, तो दे न्यू दैट. दिस इज समथिंग व्हिच इज इंटरेस्टिंग बिकॉज आई एम सीइंग नाउ दैट जो एक सपोर्ट स्ट्रक्चर था इसका, वो धीरे धीरे करके ऑफ हो रहा है. सो दैट इज वेरी interesting, but at inside what he's still doing is basically favoring himself, like you mentioned, the tax and VAT. Now Bangladeshis का जो protest हुआ था with regards to what you call Sheikh Hasina, it was basically due to inflation, high prices, inflation, standard of living. तो यही चीज वो कर रहा है, तो how long do you think the people will, वो खुद भागेगा वो अलग चीज है, but do you see a chances of another revolution sort of a thing in Bangladesh? Because I call it the protest देश, हर चीज में साला अभी protest हो जाता है, हंगर स्ट्राइक, ये वो, you know. देखो कुछ बांग्लादेश में भी कुछ भी हो सकता है. इट्स एनीबॉडीज गेस. क्योंकि सिचुएशन ऐसे, वी डोंट नो पावर स्ट्रगल क्या हो रहा है. वी नो दैट जमात इज इन पावर. वी नो दैट जमात इज मेकिंग अ लॉट ऑफ, दे मूविंग अराउंड अ लॉट, यू नो, लाइक जमात का डेलीगेशन जो चाइना गया था, जो कार्गोज अनचेक्ड आ रहे हैं बांग्लादेश के अंदर, ये बहुत पॉइंट ऑफ कंसर्न है. पाकिस्तान से जो आ रहे हैं, एग्जेम्प्ट किया है उनको चेकिंग से. We also know that the amount of power that the so-called student leaders hold in his interim government, what their ideology is. We know that जितने टेररिस्ट थे जो नॉर्थ ईस्ट के टाइम पे, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, who had played a role in terror activities and had been arrested by Sheikh Hasina, उन सबको रिलीज किया गया है. I mean, ये कब तक चलेगा? But see, it can go a couple of ways. The best way that it can go is that elections ho, interim government dissolve ho, elections ho. इसमें अब Awami League आए तो आए, BNP आए तो आए. It doesn't matter as long as कोई democratically elected party आए. उसके बाद then, you know, अगर इंडिया के point of view से देखो, then we'll, you know, we are very good at building relations and we'll figure out how to, especially because Bangladesh is an important country to us. But it can go another way also, wherein यही सिचुएशन में 3-4 साल रहे. अगर यही सिचुएशन में 3-4 साल रहा, तो जो जैसे आप इन्फ्लेशन की बात कर रहे हो, या you know how, you know, you're talking about the economy failing, you're talking about the security situation, internally भी security situation खराब होने के बहुत chances हैं. Already it is happening. Chittagong Hill tracks, the rise of radicalization, जितने सिंबल्स थे सेक्युलरिज्म के, वो मेमोरी से इरेज करने की कोशिश चल रही है. चाहे वो मुजीबुर रहमान के मेंशंस इन बुक्स History. हो, हिस्ट्री बुक्स हो, रेजिंग हिज स्टैचू डाउन. सी, बांग्लादेश में अप्रॉक्सीमेटली 20-25% लोग ऐसे ऑलवेज रहे हैं जो पाकिस्तान सपोर्टर्स हैं. एंड that has always been the case, who have not been very fond of the Mujibur type of politics. And we've seen a rise of that. So if it stays like that, I think agar India ke point of view se dekhe, we are in trouble. It will directly impact us. It's not just a question about Chittagong Hill track. मगर कभी ना कभी जितने रोहिंग्यास वहाँ बैठे हुए हैं, वो भी, they also going to start moving in a very big way, because uh, you know, they can't go back to Myanmar. Arakan controls all of Rakhine now. ट्रम्प के आने के बाद जो इमिग्रेशन पॉलिसी है, द फर्स्ट थिंग जो यूनस गए थे जब अमेरिका गए थे पावर में आने के बाद, उन्हें पहली चीज़ रोहिंग्यास के बारे में बात की थी. एंड उनकी ये, ही हैड अ ड्रीम दैट
थर्ड कंट्रीज़ भी इन्वॉल्व हों इनको सेटल करने में। तो जैसे रोहिंग्याज़ अमेरिका जाएँ, यूरोप भी ले इनको, अपार्ट फ्रॉम द नेबरहुड कंट्रीज़। अब ट्रम्प डिस्पेंसेशन के बाद ये तो होने से रहा। So the Rohingyas are not going anywhere. So that's going to become another factor. उसके ऊपर आपने इतनी खुली छूट दी हुई है बांग्ला टीम हो या यू नो हो सो ऑन एंड सो फॉर्थ दे आर रूलिंग द रोस्ट आप कैसे कंट्रोल करोगे आईएसआई का इन्वॉल्वमेंट होएगा तो ये सब देखते हुए बांग्लादेश अगर ये 4-5 साल ऐसे ही रहा विदाउट इलेक्शंस हैपनिंग बांग्लादेश itself is going to implode बट हमारे ऊपर भी इम्पैक्ट होने वाला है। सो आई थिंक हमारे लिए प्रेडोमिनेंट कंसर्न ये है कि स्पिल ओवर इफेक्ट हमारे ऊपर क्या होगा। स्टेबिलिटी लाओ वहाँ पर किसी तरह से, गेट सम सॉर्ट ऑफ अ स्टेबिलिटी। एम कैसे न कैसे टू एनकरेज डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग। अभी हमको ये भी पता है कि इट्स नॉट जस्ट अवामी लीग वाले मगर बीएनपी वाले यूनिस गवर्नमेंट के साथ थक चुके हैं। उनके पास कोई पोजीशंस ऑफ पावर नहीं है। उनके तरफ नोबडी इज लिसनिंग टू देम। उनने जो सोचा था कि दे विल कम इन अ बिग वे शेख हसन एंड एक्चुअली उनने ही नहीं सोचा था। काफ़ी जितने ऑब्जर्वर्स थे उनने भी सोचा था कि अरे बीएनपी आएगी तो रेडिकल होएगी और शेख हसीना नहीं रहेगी तो बीएनपी ही आएगी। किसी ने ये नहीं सोचा था कि इंटरिम गवर्नमेंट आएगी और अब कह रही है कि हम अनकंडीशनली रह सकते हैं, जब तक स्टेबिलिटी नहीं आएगा। फनी थिंग इज़ बीएनपी और जमात के बीच में भी झगड़े हुए हैं, व्हिच वर करेक्ट, लाइक दिस। करेक्ट तो वही तो मैं कह रही हूँ कि वो भी अपसेट है। तो कैसे न कैसे अगर स्ट्रैटेजिकली सोचा जाए कि एवरी कंट्री दैट इज़ इम्पैक्टेड बाय बांग्लादेश should push towards Bangladesh going for elections.